How are you all? I hope that you all are fine. My name is Virda Nirali from Saraswati Group of Education. And today in this session we are going to learn a new topic, that is preposition of place. So before moving towards our topic, let me first ask you that what do you mean by preposition? क्या आपको पता है कि preposition जो है वो क्या है? Preposition are the words which shows the position, कि वो हमें nouns की या pronouns की, it shows a preposition, यानी कि वो हमें उसकी position पहले बता देता है कि वो जो चीज़ है वो कहाँ पे है, right? Preposition shows the place where it is located. It shows the position where it is located. It even shows the time, place, right? So today in this session we are going to see the preposition of place. Particularly we are going to see preposition of place only. Okay? So preposition of place, let us see the definition. Shows the relationship, preposition of place, shows the relationship of place between the nouns and pronouns to other parts of a sentence. So what is the definition of preposition of place? Preposition of place so shows the relationship of place, कि वो एक place की relationship show करता है between the nouns and pronouns, nouns और pronouns के बीच में, to other parts of a sentence, कि sentence का जो दूसरा part है वो noun या pronoun वो उससे कैसे relate करता है, where it is located, it shows that kind of relationship, it shows that where it is located, position क्या है उसकी. So it shows the relationship between the nouns and pronouns to other part of the sentence. So preposition, if you want to note down this in your book, this definition, then pause the video and note it down. That preposition of place shows the relationship of place between the nouns and pronouns to other parts of a sentence. Okay? So now note it down in your book. Okay, so I hope that you have noted this down in your book. So now let us see that which prepositions will come under the preposition of place. कि preposition of place में कौन-कौन से preposition आने वाले हैं. Okay, so now we are going to see that which prepositions will come under this. So we are going to study each one of the preposition of place, each and every one with the help of the example. Okay, so the very first preposition which we are going to see is above. That is above, right? So above means what? Above means ऊपर. Yes, above यानी कि ऊपर, लेकिन उस तो up means also ऊपर, up का meaning भी ऊपर ही होता है, above means also ऊपर, on का meaning भी ऊपर होता है, right? So आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि ये सारे के सारे इसके मीनिंग्स तो सेम होते हैं, तो कौन सा हम यूज करेंगे? So above indicates a much higher position
something out of reach and something out of reach. So above means above हमें क्या इंडिकेट करता है, ऊपर तो इंडिकेट करता है, लेकिन इंडिकेट्स मच हायर पोजीशन में, यानी कि वो बहुत ऊंचा हो, एंड समथिंग आउट ऑफ रीच कि हमें समटाइम्स इट हैपेंस कि वो हमें दिखाई भी ना दे, इतना ऊंचा हो, राइट, लेकिन ऊंचा मीन्स वो बहुत ही ऊंचा हो, अबव मीन्स, ओके। नाउ द एग्जांपल इज माय मार्क्स आर अबव एवरेज। My marks are above average, यानी कि मेरे मार्क्स है वो एवरेज से above यानी कि ज्यादा है। एवरेज मीन्स बहुत ज्यादा मार्क्स भी नहीं और बहुत कम मार्क्स भी नहीं, एवरेज मार्क्स, राइट। लेकिन मेरे मार्क्स जो है वो एवरेज मार्क्स से बहुत ज्यादा है, राइट, आर अबव एवरेज। Now another example, my bookshelf is above the refrigerator. My bookshelf is above the refrigerator. यानी कि मेरा जो बुक शेल्फ है वो रेफ्रिजरेटर के ऊपर है, राइट। My bookshelf is above the refrigerator. मेरा जो बुक शेल्फ है वो रेफ्रिजरेटर के ऊपर है, right? So in this way, above is used to indicate the position which is higher, right? और यानी कि the position which is upside, जो आपके ऊपर हो, that position. Okay? So this is the very first preposition of place. ये जो preposition था वो preposition place का पहला जो था। Now the next is on. On. So on means भी ऊपर ही होता है, लेकिन indicates a position, indicates a position above but touching the surface of an object. ऑन भी ऊपर ही पोजीशन इंडिकेट करता है, लेकिन बट टचिंग द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऊपर तो है लेकिन कोई भी चीज, यानी कि अगर मेरे हाथ में ये डस्टर है, राइट, तो ये जो मार्कर है, मार्कर डस्टर को टच कर रही है, इट इज टचिंग द सरफेस, राइट। सो वी कैन से दैट अ मार्कर इज ऑन द डस्टर, यानी कि जो मार्कर है वो डस्टर के ऊपर है। क्यों? क्योंकि ये मार्कर ने डस्टर को टच किया हुआ है, इसीलिए। सो ऐसी कोई भी चीज जो ऊपर है लेकिन वो सरफेस कोई भी चीज को टच कर रही हो, देन वी आर यूजिंग ऑन, तो ही हम ऑन का यूज करेंगे। नाउ फॉर एग्जांपल, माय बुक इज ऑन द टेबल। यानी कि मेरी जो बुक है वो टेबल के ऊपर है। सो वो बुक जो है वो हवा में नहीं उड़ रही है, वो बुक है वो टेबल को टच करके रखी है ना, इट इज टचिंग द टेबल, सो इट इज टचिंग द सरफेस, राइट। सो वी हैव यूज्ड द preposition on. इट इज वो ऊपर तो है लेकिन वो सरफेस को टच कर रहा है, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड द preposition on. The phone is
द टेबल, यानी कि फोन जो है वो टेबल के ऊपर है यानी कि वो हवा में नहीं उड़ रहा है, वो टेबल को टच करके ऊपर, टेबल के एग्जैक्ट ऊपर है, वो सरफेस को टच कर रहा है, राइट? सो वी हैव यूज्ड द preposition on. So on we will used when it indicates a position above. Above तो indicate position करता है ऊपर की, लेकिन but touching the surface of an object, अगर वो surface को touch करेगा then and then only it is we are going to use on. Now the next is beside. Beside. So beside we are going to use next to something. Next to something or पास होना. A girl is standing beside me. यानी कि गर्ल जो है वो मेरे पास खड़ी है. पास होना means beside, right? So you can write, can you sit beside me? Can you sit beside me? क्या तुम मेरे पास बैठोगी? Next to something, beside. पास होना. Beside यानी कि पास होना और next to something. Can you sit beside me? Church is beside my school. Church is beside my school, यानी कि चर्च जो है वो मेरे स्कूल के पास है, राइट? पास होना यानी कि beside. जब हम ऐसे कोई पोजीशन इंडिकेट करते हैं जो हमारे पास हो, at that time we are going to use beside. Okay? Now we'll see the next preposition. Okay, so now we are going to see the next preposition is near. The next preposition is near. So near means पास. near का मीनिंग भी पास होता है, लेकिन वो एक डिस्टेंस, वो हमें डिस्टेंस बताता है. shows a distance. shows distance. उसका मीनिंग भी पास ही होता है, लेकिन it shows the distance. It is nearer to me or far, right? My house is near my school. मेरा घर है वो मेरे स्कूल से नजदीक है. My house is near my school, right? The dog was very near to me. यानी कि जो डॉग था वो मेरे बहुत ही पास था, right? So जो नजदीक होता है when it is showing a distance, जो आपको distance show करता है, पास, right? So at that time we are going to use near. Okay? Now the next preposition is behind. The next preposition is behind. Behind means what? Behind means पीछे. Behind means पीछे, back, right? So पीछे होना यानी कि the tree is behind the car. यानी कि एक ट्री है, कार के पीछे है,
राइट, यानी कि बिहाइंड द कार। नाउ कैन यू स्टैंड बिहाइंड मी, क्या तुम मेरे पीछे खड़ी हो सकती हो? गो एंड सिट बिहाइंड दैट गर्ल, जाओ और तुम उस गर्ल के पीछे बैठ जाओ, राइट। सो व्हेन यू आर इंडिकेटिंग अ प्लेस, जो बैक आपके पीछे की जो प्लेस, आप पीछे की कोई प्लेस इंडिकेट करते हो, then you will use behind, you will use the preposition behind. Okay, now our next preposition is below and under. बिलो एंड अंडर, बिलो और अंडर वो दोनों, कोई भी चीज नीचे हो, वो चीज वो उनके लिए हमें बताता है, वो प्लेस हमें बताए जो, यानी कि हमारी नाउन या प्रोनाउन कोई नीचे हो, राइट, इट इंडिकेट्स दैट प्लेस या नीचे होना। सब किसी चीज के नीचे, कोई भी चीज के नीचे होना। सो नाउ अंडर, below the surface of something, किसी चीज के नीचे, किसी चीज के नीचे, किसी चीज के नीचे, राइट। सो और बिलो जो है वो किसके लिए यूज होते हैं? वो स्लाइटली, कोई भी चीज है उसके थोड़े ही नजदीक वाली पोजीशन पे हो, स्लाइटली लोअर पोजीशन, राइट। If I say I have a mark over here, so what do you say? I have a mark below my eye, यानी कि वो एकदम ही नजदीक हो। और आप बिलो या अंडर, जो भी आपको अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस जो सूटेबल लगता है, यू कैन यूज इट, बिकॉज बोथ आर हैविंग इट्स सेम मीनिंग, दोनों के मीनिंग जो है वो सेम ही होते हैं। ये नीचे, कोई भी चीज के नीचे होना, सो यू कैन यूज एनी ऑफ द वर्ड अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस विच इज सूटेबल, राइट। जो भी सूटेबल वर्ड है वो आप यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। नाउ लेट अस सी द एग्जांपल। The cat is under the table. The cat is under the table. cat जो है वो टेबल के नीचे है। Now हमने जो above में मार्क्स वाला एग्जांपल लिया था, my marks are above average, यानी कि वो एवरेज से ज्यादा है, तो हम वही एग्जांपल ले सकते हैं कि my marks are below average, यानी कि जो एवरेज मार्क्स होते हैं उससे कम है मेरे मार्क्स, राइट, नीचे है, so below average. Okay, so below and under we are using to indicate the place where it is, कोई भी चीज नीचे है तो उसके लिए हम below या under को यूज करेंगे। Now the next preposition is underneath. Underneath. Underneath, यानी कि कोई चीज बहुत अंदर हो, अंदर तो है, इन यानी कि अंदर, लेकिन अंडरनीथ में यानी कि ऊंडे आप अंदर डूबते जाओ, अंदर एकदम अंदर हो, बहुत ही अंदर, पानी में एकदम ही अंदर जाओ तो आपको कुछ दिखाई देगा, राइट, बहुत ही अंदर जाना पड़ेगा। सो उसका हम एग्जांपल ले सकते हैं कि दैट इज देयर इज अ न्यू वर्ल्ड अंडरनीथ द ओशन, दैट इज अ न्यू वर्ल्ड underneath the ocean, that is a new word underneath the ocean. Underneath यानी कोई चीज बहुत अंदर होती है, बहुत, right?
तो यानी कि एक नया वर्ल्ड है, मीन्स महासागर में, अंडर ओशन, ओशन के अंदर बहुत ही अंदर आप जाओगे तो आपको एक नई दुनिया दिखाई देगी। सो बहुत ही अंदर, राइट। सो उसके लिए हम अंडरनीथ का यूज करेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज अपोजिट। अपोजिट, अपोजिट यानी कि सामने, अपोजिट यानी कि सामने, राइट। सो आई लिव अपोजिट द पुलिस स्टेशन। आई लिव अपोजिट द Now there is a market opposite to my house. कि एक मार्केट है मेरे घर के सामने, opposite to my house, right? कि मेरे घर के सामने opposite my house यानी कि मेरे घर के सामने एक मार्केट है। So ऐसे ही जो सामने कोई है तो उसे इंडिकेट करने के लिए हम opposite का यूज करेंगे, right? Now next is in। इन यानी कि अंदर, इन यानी कि अंदर, राइट। सो गेट इन द कार, अंदर आना। आप कभी कभार कोई आप कहीं पे जाते हो तो गेट पे लिखा होता है इन एंड आउट। तो इन मीन्स अंदर जाना, आउट मीन्स बाहर निकलना। इन मीन्स अंदर जाना, आउट मीन्स बाहर निकलना, राइट। तो आप गेट पे ऐसा लिखा होता है इन एंड दूसरे गेट पे आउट लिखा है, तो इन वाला गेट है तो उसी में से हमें अंदर जाना है, राइट। इन मीन्स अंदर। तो हम इसका सेंटेंस ले सकते हैं गेट इन द कार, की कार में अंदर आओ, बैठो, गेट इन द कार, राइट। देन यू हैव बीन प्लेइंग ऑल डे, नाउ गेट इन द हाउस, अब चलो घर के अंदर चलो, राइट। सो ऐसे ही इन का यूज होता है अंदर, कोई भी चीज अंदर जाने के लिए जो यूज होता है उस हम वहां पे हम इन का यूज करते हैं, राइट। नाउ लेट अस सी अनदर वन। चलो अब हम कोई दूसरा प्रपोजिशन देखते हैं। सो आवर नेक्स्ट प्रपोजिशन इज बिटवीन। बिटवीन यानी कि दो चीजों के बीच में, या दो चीज आपके पास है उसके बीच में कोई चीज रखी जाए, दैट इज बिटवीन। आपने बिटवीन नंबर्स तो पढ़ा होगा। बिटवीन नंबर्स यानी कि आफ्टर और बिफोर के बीच में आने वाला जो नंबर है वो हम लिखेंगे, राइट। दैट आर नोन एज बिटवीन। बिटवीन आप यानी कि बीच में, राइट। सो आई लिव बिटवीन द लेन्स। आई लिव बिटवीन द लेन्स। यानी कि मैं दो गलियों के बीच में रहता हूँ, दो गली जा रही है और उसके बीच में मेरा घर आ रहा है, राइट। आई लिव बिटवीन द लेन्स, ओके। नाउ और नेक्स्ट इज अक्रॉस। अक्रॉस मीन्स व्हाट? अक्रॉस का मीनिंग भी अपोजिट ही होता है। अक्रॉस मीन्स ऑल्सो अपोजिट, okay, so we can say let's walk across the street। चलो हम चलते हैं स्ट्रीट के उस तरफ। अक्रॉस द स्ट्रीट, स्ट्रीट के उस तरफ हम चलते हैं। अक्रॉस का मीनिंग भी अपोजिट ही होता है, ओके। सो दिस आर द टू। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट, दैट इज एट। Indicates an exact place।
कोई एग्जैक्ट प्लेस आपको बताता है एट कि आप कहाँ पे हो, आप यू विल से आई एम आउट, एग्जैक्ट लोकेशन आपको पूछी जाए लेकिन आप एग्जैक्टली अभी कहाँ पे हो, तो यू विल से आई एम एट, कोई भी जब आई एम एट दिस जॉर्ज पार्क, आई एम एट जॉर्ज स्ट्रीट, आई एम एट कालावड रोड, मीन्स एग्जैक्टली आपकी प्लेस कहाँ पे है। तो वो एग्जैक्ट प्लेस को इंडिकेट करने के लिए वी आर यूजिंग एट। आई एम स्टैंडिंग एट जॉर्ज स्ट्रीट। I am standing at George Street, right? Exact place हमें बताता है. Okay? Now let us see the next one. Okay, so the next is over. Over means a position between, means a between, on and above, which is not touching any surface, which is not touching ओवर हम क्या पे यूज करेंगे, ओवर मीन्स अ पोजीशन, वो ऐसी पोजीशन जो ऑन और अबव के बीच में आने वाली जो पोजीशन होती है वो ओवर है, यानी कि विच इज नॉट टचिंग एनी सरफेस, वो किसी सरफेस को टच नहीं करती है, ऑन सरफेस को टच करती है, अबव मीन्स बहुत ही ऊपर वाली, और उसके बीच वाली जो पोजीशन है दैट इज ओवर। नाउ अ बर्ड फ्लू ओवर माय हेड, a bird flew over my head, यानी कि बर्ड मेरे ऊपर से उड़ के गया, यानी कि उसने मेरे सिर को टच भी नहीं किया है लेकिन वो बहुत ऊंचा भी नहीं है, वो थोड़ा नजदीक से में गया है। सो a bird flew over my head. There are clouds over the hills. वो hills के ऊपर है लेकिन वो hills को touch नहीं कर रहे, but they are just be over the hills, right? So over means a position between, on and above, which is not touching any surface. Over यानी कि वो किसी surface को touch नहीं करता है, तब हम over का use करेंगे, okay? Then after our next preposition is among. Among indicates something or someone or someone in the middle of three. Or more other things or person. Now among जो हमें क्या indicate करता है, that something or someone in the middle of three, कि तीन या तीन के ज्यादा लोगों या कोई चीज के बीच में से आप कोई भी चीज निकालते हो, right? Like she is the good girl among all of you. लेकिन जो गर्ल है वो बहुत ही गुड है आप सभी के बीच में से,
ज्यादा लोगों के बीच में इसने मैंने एक गर्ल को चुना, राइट? शी डांस वेरी वेल अमंग अस, कि हम सभी के बीच में से ये जो है वो बहुत अच्छा डांस करती है, राइट? देन द डॉग इज अमंग द बॉक्सेस, द डॉग इज अमंग द बॉक्सेस। यानी कि जो डॉग है वो बॉक्सेस के बीच में है, among the boxes. Then she dance very well. She dance very well among us. She is a good dancer among us, right? So ऐसे ही जो कोई भी बीच में से आप कोई भी पर्सन को चीज सिलेक्ट करते हो, राइट? इंडिकेट समथिंग और समवन इन द मिडिल ऑफ थ्री और मोर अदर थिंग्स और अ पर्सन. At that time we are going to use among. Now the next is in front of. In front of. In front of means position facing someone or something. कोई भी चीज आपके सामने होना, राइट? शी इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, मेरे सामने खड़ी है, राइट? He parked his car in front of my house. He parked his car in front of my house. यानी कि जो आपके सामने खड़ा हो रहा है, so that is in front of. And the last one, that is by. So by means near to or next to. Near to or next to. Something or someone. यानी कि कोई भी चीज उसके पास होना, नियर टू और नेक्स्ट टू, राइट? द फार्म इज बाय द स्ट्रीम. यानी कि जो फार्म है वो स्ट्रीम से नजदीक है. द फार्म इज बाय द स्ट्रीम, यानी कि वो नजदीक है, राइट? फार्म जो है एक खेतर जो वो यहाँ स्ट्रीम से एकदम नजदीक है. ओके, सो which prepositions of place we have, which prepositions we have seen for preposition of place? We have seen the prepositions above, on, beside, above, on, beside, then near, behind, below or under, then underneath, opposite, in. Then out is also a preposition. Out means बाहर. Okay, this we have not taken over here, but out का meaning जो होता है वो बाहर होता है. Then after, between,
across, at, over, among, in front of, by. So these are the prepositions which we have seen today. इसके अलावा अगर कोई भी preposition place को indicate करे then also it comes under this only. Okay. Now I'll send you the worksheet which you are supposed to solve it in your book, which is totally based upon this topic. So while solving out the worksheet, if you don't understand anything, then first of all go through the video again. यानी कि वीडियो को फिर से देखो, or else you can ask me. Okay? So this is all about today's session, and I hope you enjoyed this session. So now until we meet again in the next session, till then, bye everyone. Thank you and take good care of yourself.